Good morning, student. Today we will study about another force, a very important part of our daily life, and that force is the name is the friction force. Many times we have heard this word, student, about this friction force. Today we will go into the detailed picture of it, that how the force acts. By basic student, generally we have learned about the forces till date. They are gravitational force, and another is student electrical force. These two forces we have learned till date, and another one which exists inside the nucleus, that is nuclear force. But since this exists only inside the nucleus, so it is not visible as such. We are only acquainted by these two forces in our daily life. This electrical, under this forces, student, all the forces come, the magnetic force, electrostatic force, electromagnetic force, all this comes under electrical forces. So as a origin, student, this force friction, the root origin of this is nature, it is electrical force, student. This you have to remember, it is the electrical force, its origin root is electrical. Though in the explanation, detailed explanation, we don't consider the electrical part of it, we explain in a different manner. But the starting part is electrical in nature. So what happens is, generally, student, we have studied that atom, at the center there is a nucleus, and outside the electrons are revolving in various orbits. These are the electrons. So on the surface or in the inner part of the orbit, electrons are revolving. So what happens is, student, when two bodies, and as a whole the atom is a neutral. So when two bodies comes in contact, student, say one surface and another surface is this. So what happens on the upper part of this surface, the outermost orbit, electrons are there, student, and here also the bottom part of this surface, it has also electrons. So what happens, this electrons gets a chance to enter into the vicinity of the other electron. So ultimately what happens, the electrons of one atom gets trapped into the electrons of the region of the other atom. So some kind of interlocking takes place, students, when two surface comes in contact. Interlocking. So suppose from one atom an electron has left and entered the second surface of atom. So one atom attains positive charge, other atom attains negative charge, and there is a force of attraction which develops, and which is electrostatic force. So the root cause of this is, that is why I said the friction is electrical force. Now student, now we are coming into the characteristic of this friction force. This force comes into play only when first thing you have to remember, student, this friction is a reactionary force. This friction is a reactionary force. Suppose, and this is a table and this book is kept here, student. Now this is at rest. This object is at rest, student. Now there is no friction. Now there is no friction, student. It will only come when I will try to apply force on this object from outside. That time this force comes into play, and where it comes, at the point of this friction acts at the point of contact between the two surfaces. As soon as I apply a force, it reacts. That reaction is the friction, and where it comes, at the point of contact, and its direction is, student, tangential to the surface. The direction of friction force is tangential to the surface. But tangential means which direction, student? The main part of this friction, you have to remember it, the direction of friction force is opposite to the direction of intention, student. This word is very important, student.
Direction of intention of relative motion. Direction of intention of relative motion. Opposite to the intention. So this generally in a friction there is a lots of confusion occurs. We generally say it opposes the direction of motion. It is not correct, student. We have to say it opposes the direction of intention. I will explain you the meaning of intention. For example, student, see this example I am taking. Suppose, student, I apply force on this object along this way. Now this force will have two components, student. One is along this and other is along this. So this force will try to move this object along this direction. Means the intention of motion of this object A is along this direction. This is the direction of intention of motion, student. Direction of intention of motion. This is the direction of intention of motion, student. So, student, what happens is the friction will act along this direction. So, if you see, it is not opposite to the applied force. Applied force is in this direction. It is opposite to the intention of motion. The object tries to slide over this object, and direction of intention of relative motion, you have to say. It mainly opposes, student, relative motion. Now suppose, student, I apply force in this direction. Now suppose I apply force. This is the object, student. Now I apply force in this direction. Now this force again will have two components. One is this, other is this. Now this means this force, student. This component will try to move in this direction, move the object in this direction. So now the friction force will act along this direction. This you have to remember, student, it opposes the direction of intention of motion. Now, student, will come into the more detailed part of this force. This friction force is studied in different categories. When you talk about this force, student, one which comes is static friction. Means the object at rest. That time the force which act friction when the external force is applied. Second, when the object comes in motion. That time also friction is there, and that is kinetic friction. Again, this static friction is studied in two parts, student. Self-adjusting and second part is limiting friction. Limiting friction. And kinetic, under kinetic, student, again there are two categories comes. Sliding friction and second is rolling friction. When the object is at rest and we are applying a force on it, that time the friction which place is static, and when it comes in motion, that time it is kinetic. We will come into detailed study of both this type of friction, student. Now, one of the very most important characteristic of friction is, student, friction is responsible
and necessary for starting the motion. And here I should add another word, static friction. Student, this is a very important point and it already confuses us then how the friction is responsible for starting the motion. Generally we are saying that friction is a great loss. In machines also friction forces are there, lubricants are used to reduce the friction. But here we are saying friction is responsible and necessary for starting the motion. This means without this motion cannot be started, student. Now students, see there are three kinds of motion, you see. I will show with the help of an example, student. Say this is an object. This is linear. This object is moving. It is linear motion, student. Now at this point, it is hinged at this point. Now I am moving. It is also motion, but it is rotatory motion, student. This is rotatory motion, student. The system is not moving forward. It is rotating at the same place. Now if the motion is like this, student, see, as the wheel rotates. This is rolling motion, student. This is rolling motion. For example, student, if I will give one example, student. Say this is student, see. If I move like this, it is a linear motion. If I move like this, it is rotatory motion, student. But if I move like this, student, as the wheel rotates, it is rolling motion, student. See, rolling motion it is. Now, student, I will try to explain how friction is responsible for starting the motion. See, student. Suppose, student, this is the wheel. This is the axle. This is the road, student. I am considering one point of the wheel here A, another point of the wheel here C, and another point on the road I am taking it B, student. Now, students, see what happens. When you apply force on the axle of the wheel, say we are accelerating the engine, we are applying force on the wheel to move along this side, student, this direction. So now what will happen, student, if you see this point C will come along this way and this point A will come along this way. But student, now the wheel is at the same place. Remember, the motion has not started forward by this time because it is happening like this now. Like this, student. Wheel is in the same place. Now what will happen is at the point of contact, student, here you see point A and point B. Here what happens, if force comes into play, this is static friction, student, acting at this point. And one of the characteristic of static friction is it locks the 2 points in contact, student. I am writing it here. This is the very nature of this static friction. Static friction locks the 2 points in contact. ये उन दोनों पॉइंट को लॉक कर देती है, स्टूडेंट. अब आप देखो ये पॉइंट यहाँ पे लॉक हो चुका ड्यू टू फ्रिक्शन और यहां से हमने इंजन से फोर्स लगा, इसकी वेलोसिटी व्हील की इस तरफ है, तो ये तो सी तो ऐसे ऐसे आ गया, स्टूडेंट. लेकिन ये लॉक हो गया, ये लॉक हो चुका ड्यू टू फ्रिक्शन. इस लॉक होने का रिजल्ट क्या निकला, ये सी आगे निकल गया, ए वहां रह गया, मतलब व्हील हैज स्टार्टेड मोशन फॉरवर्ड. ये व्हील का मोशन स्टार्ट हुआ इस लॉकिंग की वजह से, स्टूडेंट. अब आप देखिए इसका इंटेंशन ऑफ मोशन किस तरफ है, इस पॉइंट ए का हमने ऐसे फोर्स लगाया, स्टूडेंट, आगे बढ़ाने के लिए. तो इसका इंटेंशन ऑफ मोशन ये है, स्टूडेंट, बैक साइड. इसमें फ्रिक्शन कहां लग रहा है, स्टूडेंट, देखो इस तरफ लग रहा है फ्रिक्शन. ये देखिए
यहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूजन आता है कि अपन कहते हैं फ्रिक्शन अपोज कर रहा मोशन को, तो यहाँ पे दो प्रकार का मोशन हो रहा है स्टूडेंट। जो ये वाला पॉइंट है ये तो पीछे जा रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आगे की तरफ है स्टूडेंट, देखो जिस तरफ वेलोसिटी है, ये आपको समझना है स्टूडेंट। तो इस पॉइंट का जो इंटेंशन है मोशन का वो अलोंग दिस डायरेक्शन है, इंटेंशन ऑफ मोशन। तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस तरफ, और ये लॉक कर चुकी है पॉइंट को, इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। अब क्या हुआ, जैसे ये व्हील आगे बढ़ रहा है स्टूडेंट, ये पॉइंट ए ऊपर आ जाएगा और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और ऊपर आना फ्रिक्शन, जब ऊपर हम करते हैं अलाउ है स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर रखा है ऊपर हम इजीली खींच सकते हैं, वहां फ्रिक्शन काम नहीं करेगा बिकॉज इंटरलॉक ऐसे हो रहा है, तो ऐसे आराम से आ सकती है। जब हम ऐसे स्लाइड करते हैं तब फ्रिक्शन आता है, ऐसे में देयर इज नो मैटर। तो ये पॉइंट ए ऊपर आ जाएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इस तरह से व्हील आगे चलने लगेगी स्टूडेंट। सो दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन स्टूडेंट, रिस्पॉन्सिबल एंड नेसेसरी फॉर स्टार्टिंग द मोशन। अब हम स्टूडेंट एक और एग्जांपल लेते हैं आपको, देखो जब हम वॉकिंग करते हैं स्टूडेंट, व्हेन यू वॉक एक्चुअली व्हाट हैपन, देखो दिस इज द ग्राउंड, ये हमारा लेग है स्टूडेंट। हम क्या करते हैं, लेग से ग्राउंड को पीछे तरफ पुश करते हैं। वी पुश द ग्राउंड बाय आवर लेग इन द बैक साइड। अब इस तो हम जब पुश करते हैं स्टूडेंट, ग्राउंड इसका रिएक्ट करता है। इसके दो कंपोनेंट है स्टूडेंट, एक दिस टाइप और एक दिस टाइप। तो ये जो ग्राउंड रिएक्ट करता है स्टूडेंट, इससे हम स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट यहां पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा लेग का जो पॉइंट है स्टूडेंट, ये लेग है स्टूडेंट, मैं इसको ये नाम दे रहा हूं, ये ग्राउंड का पॉइंट भी है। तो क्या हो रहा है, ये दोनों इंटरलॉक हो चुके हैं स्टूडेंट, स्टैटिक फ्रिक्शन आ चुका है यहाँ पे, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये लॉक हो चुका है फ्रिक्शन के कारण। और ड्यू टू दैट जब हम इसलिए हम ग्राउंड पे फोर्स लगा पाते हैं फ्रिक्शन के कारण। तो जब हम इसमें फोर्स लगाते हैं तो ग्राउंड रिएक्ट करता है स्टूडेंट, और तब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट। और जब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हमारा सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब होता है तो हम गिरने को होते हैं, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारा दूसरा पैर ऊपर आ जाता है, सामने आ जाता है, वो उसको बैलेंस करता है स्टूडेंट। तो व्हाट आई वांट टू से इज स्टूडेंट, ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन अपन ग्राउंड में फोर्स लगा पाते हैं। मान लो यहाँ पे अपन ने कुछ ऐसा कुछ ऑयल वगैरह यहाँ पे डाला हुआ है ऑयल, अब क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ काम नहीं कर पाएगा स्टूडेंट। जैसे अपन ग्राउंड में फोर्स लगाएंगे ये लॉक होगा नहीं, तो वी विल स्लिप बैकवर्ड, हम चल नहीं पाएंगे स्टूडेंट, वी कैन नॉट वॉक। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पे अवेलेबल है, इसलिए हम ग्राउंड में फोर्स लगा पाए। और क्योंकि हम फोर्स लगा पाए, न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर, जिससे हम ग्राउंड ने हमारे ऊपर फोर्स लगाया। तो अगर ये फ्रिक्शन यहाँ पे ना हो तो हम मोशन को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट, और इसी का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने ऑलरेडी लिखा लॉक्स द 2 पॉइंट्स इन कांटेक्ट। अगर ये लॉक ना करे स्टूडेंट, जैसे हम बनाना के छिलके पे जब चलते हैं हम नहीं चल पाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि बनाना का छिलका और हमारा पैर उसके बीच में लॉकिंग नहीं हो पाती है स्टूडेंट। तो हम ग्राउंड में फोर्स लगा नहीं पाते हैं, ग्राउंड हम पे नहीं लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर वहां नहीं आएगा स्टूडेंट। So this point student, friction is responsible necessary for starting the motion. अब स्टूडेंट एक दूसरी बात इसमें है कि जैसे मान लो ये गाड़ी स्टूडेंट चल रही है, ये व्हील है, ये एक्सेल है, ये व्हील आगे चल रही है स्टूडेंट। इसका मेथड अभी हमने आपको समझा दिया था स्टूडेंट, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जब ये चल रही है स्टूडेंट, हमने इंजन को ऑफ कर दिया, तो ये गाड़ी हमेशा क्या चलती रहेगी, नो। हमने इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी में पढ़ा है स्टूडेंट, इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी। एन ऑब्जेक्ट एट ए मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन अंटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। तो ये गाड़ी तो हमेशा चलता रहेगा ड्यू टू वेलोसिटी, उसमें ऑलरेडी है, भले हम इंजन ऑफ कर दें। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है, कुछ देर बाद गाड़ी रुक जाएगी। तो ये गाड़ी को रोक कौन रहा है स्टूडेंट, हु इज स्टॉपिंग द मोशन, किस लिए रुक रहा है, अब भी फ्रिक्शन रोक रहा है स्टूडेंट, उस फ्रिक्शन का नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमें स्टार्टिंग ऑफ मोशन में हेल्प करता है स्टूडेंट, और काइनेटिक फ्रिक्शन helps to
रिटार्ड द मोशन और स्टॉप द मोशन। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। रोक कौन रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। यदि ये ना हो स्टूडेंट, जब भी हम स्टूडेंट व्हेन यू बाय द व्हीकल्स में गाड़ी में जाते हैं, हम सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछते हैं कि उसमें ब्रेक कैसा है स्टूडेंट, बिकॉज गाड़ी यदि रुके ही ना, इट इज वेरी डेंजरस फॉर अस। तो स्टूडेंट हम इसलिए पहले ब्रेक की बात वहां पे करते हैं। तो हमें रोकने वाला जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक है फ्रिक्शन, बिकॉज जब ऑब्जेक्ट चल रही है, अब देखिए स्टूडेंट गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, मतलब जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तब काइनेटिक फ्रिक्शन काम करते ही हम जानते हैं। अब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में, वहां स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। अब स्टूडेंट क्या होता है, देखो ये गाड़ी चल रही है, अब मान लो उस गाड़ी वाले ने एक्सीलरेटर को इंक्रीज किया, ही एक्सीलरेटेड इट। एक्सीलरेटर में उसने फोर्स को, इंजन के फोर्स को बढ़ाया आगे गाड़ी को स्पीड करने के लिए। तब क्या होता है स्टूडेंट, जब ये एक्सीलरेट करता है उस वक्त स्टूडेंट ये वाला जो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बढ़ जाता है स्टूडेंट, इट इंक्रीजेस, मतलब ये इंटरलॉकिंग बढ़ जाती है फोर्स। तो जब ये बढ़ जाती है तो इसका जो रिएक्शनरी फोर्स है वो बढ़ जाता है फ्रिक्शन स्टूडेंट, उससे गाड़ी एक्सीलरेट होती है। ध्यान रखना स्टूडेंट, गाड़ी एक्सीलरेट हो रही है स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब जब गाड़ी चल रही है उसमें दोनों फ्रिक्शन एक साथ काम कर रहे हैं स्टूडेंट व्हील में। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमें एक्सीलरेट करने में हेल्प कर रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन हमें गाड़ी को रोकने में मदद करेगा स्टूडेंट। ये बात आप याद रखना। और दूसरी बात, अगर मान लो स्टूडेंट गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो आप देखना जब गाड़ी कांस्टेंट चलती है उसमें बीच में तब भी हमें एक्सीलरेटर दबाना पड़ता है, इसको मेंटेन करने के लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन को मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट। तो गाड़ी एक्सीलरेट हो रही है ड्यू टू द हेल्प ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और गाड़ी जो रुक रही है दैट इज ड्यू टू द काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बेसिक आपको याद रखना है स्टूडेंट। अब अपन स्टूडेंट स्टैटिक फ्रिक्शन के और कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं, इसके मैथमेटिकल पार्ट में आते हैं स्टूडेंट। तो आपको स्टूडेंट स्टैटिक फ्रिक्शन का नेचर समझ में आ गया होगा। तो आपको याद रखना इट इज ए रिएक्शनरी फोर्स। ये ऐसे नहीं आएगा एक ऑब्जेक्ट एक पे रखा नो फ्रिक्शन, ये कब आएगा? रिएक्ट, जब हम उसमें उसको मूव करने की कोशिश करेंगे, रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए आएगा स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट देखा गया। अब देखिए स्टूडेंट, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा गया है स्टूडेंट, हमने यहां से अप्लाई किया फोर्स 2 न्यूटन, दिस ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, और हमें पता है फोर्स के कारण मोशन होना चाहिए, फोर्स इंक्रीज वेलोसिटी। यहां नहीं हो रहा, मतलब यहां पे जो फ्रिक्शन है वो भी 2 न्यूटन का आ चुका है स्टूडेंट, तो नेट फोर्स 0 हो गया। अब हमने इसको फिर इसको कर दिया 3 न्यूटन, स्टिल द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव स्टूडेंट, इसका मतलब फ्रिक्शन भी आ चुका है 3 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शन का जो नेचर है स्टूडेंट स्टैटिक, ये है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब हमने स्टूडेंट मान लो ऐसा करते करते बढ़ाते का ये हिला नहीं, अल्टीमेटली जब हमने 5 लगाया दैट टाइम द मोशन स्टार्ट्स, जस्ट स्टार्ट हुआ मोशन। दिस मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है स्टूडेंट, जो इस सरफेस में आया दैट इज 5। बताओ हम 5 से थोड़ा भी यदि बढ़ा रहे मोशन स्टार्ट हो जा रहा है, 5 में जस्ट स्टार्ट हुआ, तो दिस ये जो वैल्यू इसी को कहते हैं स्टूडेंट लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आपको इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन का मीनिंग समझ में आया? द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स व्हिच कैन बी क्रिएटेड और व्हिच विल कम इनटू प्ले, वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन कहां तक, सेल्फ कहां तक एडजस्ट करेगी, उसकी एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि हम फोर्स बढ़ाते जाएं फ्रिक्शन भी उतना ही आता जाएगा, नो स्टूडेंट, इट हैज ए लिमिट, उसी को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब स्टूडेंट जैसे ये मैं कह रहा था 5 न्यूटन से ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो गया मोशन, तो इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन 5 है। अब इस ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लग रहा है देखो स्टूडेंट, एक इसका वेट लग रहा है mg, दूसरा स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जा रहा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन n, इसका मतलब स्टूडेंट नॉर्मल रिएक्शन mg है। अब स्टूडेंट हमने क्या किया, इसके ऊपर एक और वेट रख दिया, मास m1,
अब देखा गया ये 5 न्यूटन से ये हिल नहीं रहा है स्टूडेंट, अब नहीं हो रहा 5 न्यूटन से स्टार्ट। इसका मतलब नाउ द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हैज चेंज। ये जो वैल्यू थी लिमिटिंग फ्रिक्शन की, ये स्टूडेंट चेंज हो गई, दिस चेंजेस स्टूडेंट। मतलब अब लिमिटिंग की वैल्यू चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट देखिए, ये एक सरफेस है स्टूडेंट, दिस इज सरफेस, मैं इसको टेबल में लिया, इसमें फोर्स लगाया, तो देखा कि ये 4 न्यूटन के फोर्स से एक मोशन इसका स्टार्ट हो गया। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आया सरफेस के बीच में वो आया स्टूडेंट 4 न्यूटन। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा पानी से इसको गीला कर दिया, फिर मैं टेबल के ऊपर रखा, अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ 4 न्यूटन से, ये चल नहीं रहा है स्टूडेंट, अब फोर्स से ज्यादा लगाना पड़ रहा है। दैट मीन लिमिटिंग फ्रिक्शन हैज चेंज्ड, 5 हो गई अब 5 से ये चल रही है। फिर मैंने क्या किया, इसको सनमाइका से माइका से और स्मूथ कर दिया सरफेस को बहुत ज्यादा। अब मैं देख रहा हूँ ये 2 न्यूटन से चलना स्टार्ट हो गई, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन 2 हो गया। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड कर रही है स्टूडेंट, ये इसका मीनिंग है। दूसरा मैंने यहाँ जो बताया, जैसे मैंने मास बढ़ाया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ गया स्टूडेंट। मतलब ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है स्टूडेंट, तो जब ये मास बढ़ गया ना यहाँ का वेट, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब इसके वेट और ये जो वेट है स्टूडेंट, ये इसके दैट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। दिस मीन्स स्टूडेंट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देनी है। लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट। तो जब हम इसको साइन को हटाते हैं स्टूडेंट, एक कांस्टेंट साइन आएगा, दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट, लिमिटिंग नॉर्मल रिएक्शन पे, और दूसरा नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर of the surface in contact, and second, the value of limiting friction is directly proportional to normal reaction. नेचर मतलब स्टूडेंट स्मूथ सरफेस के लिए कम हो जाता है और रफ सरफेस के लिए ज्यादा हो जाता है। ओके स्टूडेंट, दिस यू हैव टू रिमेंबर। रफ सरफेस it is high, for smooth surface it is less, this becomes less student. Now student, let's see one arrangement here student. Here one pulley is there student, here one object, this is tied with a thread like this, and here one hanging stand is there on which the weight can be kept. इसका स्टूडेंट मास है m, अब स्टूडेंट सपोज हम यहाँ पे एक मास रखते हैं इस पे, तो इसमें ऑब्जेक्ट जो फोर्स लग रहा है वो mg लग रहा है स्टूडेंट। दिस फोर्स थ्रू द रोप ट्रांसमिटेड हियर, मतलब ये यहाँ पे mg से इसको पुल कर रही है स्टूडेंट, बट इट इज नॉट मूविंग येट, अभी ये मूव नहीं कर रहा है। दिस मीन यहाँ पे फ्रिक्शन भी mg आ चुका है स्टूडेंट। ऐसे करते करते स्टूडेंट हम इस m को चेंज करते गए स्टूडेंट, वी आर चेंजिंग दिस टाइम्स। बाद में स्टूडेंट जब ये m का वैल्यू मान लेते हैं m2 हो गया,
that time the motion has started. मतलब ये जो फोर्स है m2g से ये आगे मोशन स्टार्ट हो गया. दिस मीन्स स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा जब मोशन स्टार्ट होता है तब जो फ्रिक्शन रहती है वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, वो उतनी आती है जितना हम अप्लाई करते हैं. ये बेसिक याद रखना है स्टूडेंट. सो दिस मीन्स स्टूडेंट this means the value of limiting reaction force limiting friction is m2g. अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, इस ऑब्जेक्ट में एक फोर्स ऐसा लग रहा है और इसका नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग रहा है. ये रेस्ट में है स्टूडेंट, तो n इज इक्वल टू mg. अभी अपन ने देखा लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन. ये है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन स्टूडेंट. ओके, अब स्टूडेंट ये आ गया एफ आर, ये है म्यू m2g, ये म्यू और n है mg स्टूडेंट. इससे स्टूडेंट अपन म्यू निकाल सकते हैं m2 upon. This is a very important part of the formula student. Mu is equal to this student. Suppose स्टूडेंट हमारे पास एक 1000 kg का ऑब्जेक्ट है और इसको हमें पुल करना है. इस ऑब्जेक्ट को यू वांट टू, इसको हमें कहीं पे ले जाना है पुल करके, और जिस सरफेस के ऊपर हमें ले जाना है वहां का जो म्यू है स्टूडेंट वो है, मान लेते हैं 2. जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 2 है स्टूडेंट. तो स्टूडेंट हमें कितना फोर्स लगेगा इसको खींचने में, इस ऑब्जेक्ट को हम यहां से निकाल सकते हैं. दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड स्टूडेंट. तो फॉर्मूला है म्यू mg स्टूडेंट. कितना आ गया फोर्स रिक्वायर्ड, म्यू है 2, m है 1000 और g का वैल्यू 10 लेते हैं स्टूडेंट. देखिए स्टूडेंट इतना फोर्स हमें चाहिए 20,000 न्यूटन फोर्स. अगर म्यू 2 है और हम 1000 के ऑब्जेक्ट को खींच कर कहीं ले जाना चाहते हैं, हमें इतना फोर्स लगेगा स्टूडेंट, बहुत ज्यादा है ये. अब हम उसको ऐसे सरफेस में रख देते हैं स्टूडेंट जिसका म्यू है 0.02. अब हमें फोर्स कितना लगेगा स्टूडेंट, देखिए 0.2 इंटू 1000 इंटू 10. इसको जब अपन करेंगे स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट फोर्स कितना कम हो गया, वही ऑब्जेक्ट है. कैन यू सी द रोल ऑफ म्यू इट इज प्लेइंग. अब हमें लगेगा 2000 से, पहले हमें लग रहा था 20,000. So by this method student you can calculate the value of mu also between the two surface in contact. ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द टू सर्फेसेस. इस तरह से आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और आप एफर्ट निकाल सकते हैं, हाउ मच इज द रिक्वायर्ड. इसी पे स्टूडेंट न्यूमेरिकल बन सकता है, कई न्यूमेरिकल ऑन दिस फॉर्मूला बेसिस. तो स्टूडेंट फ्रिक्शन का जो मेन पॉइंट है दैट यू हैव टू रिमेंबर, इट इज अपोजिंग द इंटेंशन ऑफ रिलेटिव मोशन. और ये रिएक्शनरी फोर्स है स्टूडेंट, इट कम्स ड्यू टू सम एक्शन फोर्स. रिएक्शन के उसमें आता है, ऑटोमेटिक ये फोर्स आएगा नहीं, अपने आप काम नहीं करेगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, टुडे you try to write it on your own words. This we will continue in the next class. Thank you students.